اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو پاس کیا، جینڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا جینڈر چینج ہو جاتا ہے. اگر اس میں خواتین آتی ہے وہ سمجھتی ہے یعنی کہ جیسے خواجہ سراں کے اندر ایک روح ہوتی ہے، ایک عورت کے اندر بھی ایسی روح آتی ہے، مگر ان کو کلیئر کر دینا چاہیے نادرہ کو، یعنی کہ یہ عورت ہے پیدائشی، اس کو عورت ہی لکھنا چاہیے. بالکل آپ کے یہ جو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں، اگر جو مرد خواجہ سراں، اگر میں ایک مرد خواجہ سراں ہوں تو میں اپنے آپ کو کیسے عورت بنا سکتی ہوں؟ یہ ایک میں تو سیدھے 4 لفظوں میں یہ بات کو فائنل کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کا قانون ہو، مگر میرے اللہ کے قانون سے بڑا کوئی بھی قانون نہیں. اللہ کے قرآن کو دیکھیں اور اللہ کی حضور پاک کی حدیثوں کو دیکھیں، سورۃ الشور کے دیکھیں، جہاں بات آتی ہے نا یعنی کہ جینڈر کی، میرا اللہ کا نبی کسی جینڈر کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے صرف انسانیت کو. بالکل آپ بالکل بھیجا. تو اچھا سر وسیم، آپ سے میرا سوال ہے کہ جو جینڈر چینج سرجری بھی لوگ کہتے ہیں کہ سرجری کے تھرو بھی آپ اپنا جینڈر چینج کروا سکتے ہیں، تو کیا اس کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں جی، میرا پہلے ان کے سوال کا جواب دے دوں کہ جماعت اسلامی کا یہ موقع کہ میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے. انہوں نے خود یہی کہا کہ وہ نادرہ اس چیز کو چیک کریں، تو میڈیکل بورڈ کا جب اس میں وہ آ جائے گا کہ کوئی ایک عورت جاتی ہے کہ مجھے آپ مرد لکھ دیں، یا ایک مرد جاتا ہے مجھے عورت لکھ دیں، تو اس سے پہلے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہونی چاہیے. اس رپورٹ کے بعد جا کے نادرہ کو جا کے وہ کر دیں. باقی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بال ہیں یا بول چال ہے، یہ معاملات چیزیں، یہ تو دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کی 6-7 بہنیں ہیں، وہ بہنوں میں رہتا ہے، تو ایسے آتے ہیں اس کی بہن لڑکیوں والی ہو جاتی ہے، وہ لڑکی ہوتی نہیں ہے. نہیں، ہرگز یہ چیز نہیں ہوتی. بہنوں میں رہ کر بہن نہیں بن جاتا انسان. دیکھیے جی، میری بات سنیں، اگر یہ ہمارے اندر، اگر ہمارے دماغ کی بیماری ہے یا ہماری سوچ ہے، پھر اس پاکستان کے اندر ایسا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. کیا اس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ بالکل اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات جو نادرہ کہ آپ میڈیکل بورڈ کی بات کر رہے ہیں، اگر پاکستان کے اندر نہیں کسی بھی ملک کے اندر اگر ایسا قانون ہے تو پھر آگے آپ ٹرانسجینڈر کے لیے، خواجہ سراں کے لیے بھی آواز اٹھائیں، یعنی کہ ان کا بھی میڈیکل ہونا چاہیے. اگر میڈیکل ہوگا تو پھر ہر مذہب، ہر نسل، ہر رنگ، ہر عورت، ہر مرد کا ہوگا. بالکل جو یہ طریقہ کار ہے نا، یعنی کہ ایک ہماری پہچان کرنے کے لیے یا تو ہماری سلواریں اتاری جائیں گی، یا تو ہمیں میڈیکل بورڈ کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں شناخت دینی پڑے گی. ایک مسلمان ہونے کے رشتے بات کر رہی ہوں، اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ قانون موجود ہے، یعنی کہ کسی مرد اور عورت کی شناخت اس کے میڈیکل سے ہوتی ہے، اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اگر قانون نہیں ہے، میرے رونے سے یا دعوت اسلامی کے رونے سے، عمران خان دیکھو آج بھی اس کا ایک ایونٹ چل رہا ہے رنگیا خان میں، آزادی کی وہ بات کر رہا ہے، حقیقی آزادی. جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اس ملک کو آزاد کیا تھا، کچھ ناصر پسند لوگوں نے اس وقت بھی پاکستان کے بارے میں مردہ آواز نعرہ لگایا تھا. انڈیا کے دیکھ لیں، ہندوستان کے دیکھ لیں، دلی کے دیکھ لیں، جو آج لوگ وہ پاکستان کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. پروگرام ہمارا جاری رہے گا، لیکن فی الوقت وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک. جی میم صبا، آپ کچھ فرما رہی تھیں. میں یہ کہہ رہی تھی یعنی کہ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ پاکستان آزاد کیا تھا، کچھ لوگ تو آج عیش و آرام کی زندگی، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے اندر، مگر میری کمیونٹی، میرے جیسے لوگ آج بھی گرگوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. کیا ان گرگوں کے گھر کون سے سکل ہمیں ملے ہیں، کون سی تعلیم ہمیں ملی ہے، کون سی نوکریاں ہمیں ملی ہیں؟ وہ نوکری جو ہم ہر مرد عورت کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہ نوکری جو ہم ہر کسی کے آگے کٹ پتلی کی طرح ناچیں. بالکل. میں اس کلچر کے خلاف نہیں بات کر رہی، میں اس رولز کے خلاف بات کر رہی ہوں. میں اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو حقیقت ہماری زندگیوں کو تہس سے نحس بنا دیا. کوئی سستے دامن بک رہا ہے، کوئی مہنگے دامن بک رہا ہے. اس میں تو نہ تو دعوت اسلامی والوں نے بات کی، نہ ہمارے مذہبی بھائیوں نے بات کی، نہ ہی ہمارے سیاسی لوگوں نے بات کی، نہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا. بالکل. اس بل کے اندر، موجودہ بل کے اندر لکھا ہوا ہے
7 साल कैद, 10 लाख रुपया जुर्माना। मगर ये तेजी से, रफ्तारी से यानी कि ये वायरस फैलता गया, मगर उन लोगों को सरेआम लाना चाहिए जो लोग मेरे बच्चों को, मेरे जैसे इंसानों को खरीदा फरोख्त। अच्छा सबगुल साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि जैसे कि हम लोगों को थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, जैसे कि सर वसीम ने भी कहा है कि अगर वो बाकी आपके हकूकों में के हक में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक मेल अगर है तो उसको मेल ही रहना चाहिए, एक फीमेल है तो उसको फीमेल रहना चाहिए, उसको मतलब ये हक नहीं है कि वो अपना जेंडर तब्दील करवाए। तो आप क्या कहती हैं इसके बारे में कि वाकई क्या ऐसा होना चाहिए? अगर ये खुल करके है ना इस चीज के बारे में, LGBT के बारे में, जी तो फिर तो हम इनके साथ ही हैं, आज भी और कल भी। जी क्योंकि यानी कि इस चीज़ का जब तक यानी कि हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट डेटा इकट्ठा नहीं करेगी, इनका वो सारा कुछ नहीं करेगी, जी। अपने उसमें रजिस्टर नहीं करेंगे, तो किस तरह के लोग पहचानेंगे? हमें पहचानने में कुछ समझ नहीं लगती कि कौन लोग हैं कौन लोग नहीं हैं। मैं मानती हूँ यानी कि हमारे कम्युनिटी के अंदर ऐसी काली बेड़ियाँ हैं, मगर वो काली बेड़ियाँ का यानी कि हमारे जिस्म से, हमारी कम्युनिटी से, हमारे कल्चर से जुदा करना ये गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल। यानी कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती यानी कि अगर मैं एक मर्द ख्वाजा से रहा हूँ तो मैं औरत कैसे लिखवा सकती हूँ? मुझे रब ने औरत बनाया ही नहीं। अगर औरत मेरा रब मुझे बनाता तो मुझे मेरे ख्याल में इस दुनिया के सामने मैं सवालिया निशान ना बनती। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया मैम। वसीम साहब आपसे मैं सवाल करूंगी कि क्या इस बिल का जो है पहले, मतलब अब तो ये एक्ट पास हुआ है, तो क्या इससे पहले कोई एक्ट था इनके लिए, इनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के बारे में कुछ था? कोशिश जारी थी कि ख्वाजा सराह को ये बाकी जो, लेकिन 2018 में भी एक एक्ट सुना था पास किया गया उसका। पहले नून लीग के आखिरी जो हुकूमत के आखिरी दिन जी जी फिर पीटीआई ने इसको आके नहीं जाने दिया। ये मेडिकल बोर्ड देखें, अमेरिका में भी इस पे इसी ये कानून है वहाँ पे जी, तो उसमें भी ये लिखा है मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। हमारा भी यहाँ इंडिया में है, उन्होंने भी ये रखा कि मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। हमारा भी यही हुकूमत से है कि इसमें मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। बाकी हमें ये कारोबार करें, नौकरियाँ करें, मामला जिन पर हमें कोई मामला चीज़ें नहीं, ठीक है। तो इस कानून के तहत, लेकिन जब तक इनको राइट्स नहीं मिलेंगे तब तक ये कहीं भी नौकरियां नहीं कर सकते। आपको पता है कि अगर ये वैसे भी कहीं चले जाते हैं बाइक, तो हमारी जो आवाम है उनके साथ एक मिस ट्रीटमेंट करती है, मतलब उनको एक उस तरीके से नहीं वो हकूक देती जो कि हमारे मुल्क में उनको मिलने चाहिए। हमारा ऑब्जेक्शन इस पर यही है कि ख्वाजा सराह के जो इनको हम स्टेट कर रहे हैं, इस ख्याल में ये हम जिस परस्ती को आवाज दे रहे हैं, वो ये दो चीजें खत्म कर दें, बाकी हमें इसमें कोई इतराज नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि हम जिन्स परस्ती के इस मुल्क से खत्म कीजिए, बाकी इनके एक मर्द औरत बन जाएगा तो वो होगा मर्द, लेकिन वो मर्द से शादी करेगा, ओरिजिनल में वो मर्द है। तो क्या ये इस एक्ट के बारे में जो आप लोगों के पास थोड़े मौजूद हैं, अगर आप इनमें बता दें कि क्या इन दोनों में ये चीज मौजूद है कि मेल से शादी कर सकता है और फीमेल इसमें रूल है, इसमें 3 नंबर पॉइंट है, ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सराह और एनी पर्सन हु जेंडर आइडेंटिटी एंड और जेंडर एक्सप्रेशन डिफर फ्रॉम द सोशल नॉर्मल और कल्चरल बेस्ड ऑन सेक्स दे वर असाइंड टू टाइम टू नादरा। ठीक है, तो वो नादरा के पास जाके अपने आप को करवा। ठीक है सर, कुछ इश्यूज वाला है ना ये जी बाकी ये ट्रांसजेंडर वुमेन, बिल्कुल आप चाहते हैं ना। ठीक है सर, कुछ इश्यूज अगर इस चीज को क्लियर करके बता दिया जाए ना, ये नाज़रीन की सुनेगी, उसमें खुले लफ्जों में लेस्बियन और गे बॉय, बिल्कुल अगर ये इंग्लिश के लफ्ज लिखे हैं और इसमें एक्ट जो था ख्वाजा सराह का कानून, इसमें अगर इस तरह की चीजें ये मौलाना साहब जो कह रहे हैं ऐड है, और हम भी इसी के खिलाफ 4 साल से जिन परस्ती के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, इस्लामाबाद प्रेस क्लब से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक की, और रावलपिंडी प्रेस क्लब से लेकर यानी कि मैं फैजाबाद तक की, अखबारों में खबरें देखें, तमाम जगह पे देखें, 4 साल से जिस वक्त मैं कर ला रही थी, तो मेरे साथ इन लोगों ने क्यों नहीं ताउन किया? आज उन लोगों के साथ जो मैं नहीं कहती, जो बहुत खूबसूरती से झूठ बोलना चाहते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्यों? उन लोगों को इस चीज़ के बारे में है जो लोग अपनी दीन दुनिया कमाई रोजी रोटी के लिए और दूसरों को जालियत बना दिया, दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया, उन लोगों को भी ये समझ आ जानी चाहिए यानी कि हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसी लिबास में, इसी हालत में, इसी गेटअप में मैं अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ रहती हूँ।
ठीक है सबा गुल साहब, मैं ये आपसे सवाल करूंगी कि क्या आपको लगता है कि इस एक्ट के बाद आपको वो राइट्स वो सब कुछ मिलेगा जो आप लोग चाहते थे? देखिए, हम सिर्फ ना ये ख्वाब देख रहे हैं, बिल्कुल ख्वाब देख रहे हैं। लोग रोटियां बनाकर चपातियां चबाते हैं, तो हमें लोग ना खुशक काटे के फक्के मरवा रहे हैं बड़े अरसे से। ठीक है, अगर पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के गवर्नमेंट और सियासी लोग जितने भी हैं, ये अगर हमारे साथ तावन करते, 3469 ट्रांसजेंडर पाकिस्तान के अंदर वो कत्ल ना होते 1-2 साल के अंदर। जब मैंने उनका डेटा इकट्ठा किया, मिनट इकट्ठे किए, घंटे इकट्ठे किए, सन महीना तारीख इकट्ठी की, उस वक़्त का मेरा सवाल यही उठता है, अगर आइंदा के बाद जिस तरीके से ये खौफ का एक आलम फैला जा रहा है, इसमें जितनी भी जानें कीमती चली जाएंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कोई ख्वाजा सना होगा या ट्रांसजेंडर होगा, मैं इस नीयत से, इस नज़र से देखूँगी वो एक इंसान होगा। बिल्कुल, तो उसके बारे में आगे क्या इन लोगों का रद्द अमल होगा। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। जी वसीम साहब, आपसे ये सवाल है कि क्या जो मैंने सवाल इनसे किया, कि आपको क्या लगता है कि ये फ्यूचर में इनके लिए साबित होगा मस्बत या? मैडम ने कहा कि इनको वो क्या कहते हैं सूखा आटा दिया जा रहा है, वाकई इनको सूखा आटा दिया जा रहा है। जी। इसके पसे पर्दे जो वो है ना, हम जिस परस्ती वाला, जी जी, वो चीजें बूस्ट कर देंगी, ठीक है ना, ये उधर को उधर ही रह जाएंगे। बिल्कुल, आजकल जैसे हमारी हम सोशल मीडिया पे देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा भड़क रही है इस एक्ट पे कि ये नहीं होना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी हमारी कुछ कि हमने ये एक्ट नहीं पढ़ा, या तो जो आपने एक नंबर 3 में बताया कि मेल मेल से कर सकता है, वो तो हमारे इस्लाम में भी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि शादी कर सकते हैं, इसमें कि वो अपने जेंडर चेंज करा सकता है। अच्छा, अब जब जेंडर तो क्या जेंडर चेंज हमारे इस्लाम में एक शरीयत में नहीं है? बिल्कुल, अपने आईडी कार्ड पे औरत किस तरह लिखवा सकता है, जब वो अपने आप को औरत लिखवा लेगा तो वो एक मर्द से शादी करेगी, मगर आईडी कार्ड में वो लड़की हो गई है, शादी उस पर करेगी मर्द के साथ, लेकिन ओरिजिनल वो मर्द, दोनों मर्द होंगे। फिर वो जो हमारे खानदानी निज़ाम में एक औरत और मर्द और बच्चों की अवदैश, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर एज कत्ल मामला, जितने में क्या कत्ल होते हैं, जितने भी ये कत्ल होते हैं, पोस्टमार्टम होती है, वो मर्द होते हैं, वो बगैर उन्होंने उंगलियाँ सब बनाया होता है, मेकअप, लड़की, बाल, ये सारी वो मामला, लेकिन ओरिजिनल में जब कत्ल होने के बाद पोस्टमार्टम होता है, वो मर्द निकलते हैं। यही हमारा के ओरिजिनल जो ख्वाजा सरा है वो वही रहे और मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपकी ठीक है। जी सबा गुल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसे कि अभी कुछ इश्यूज आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, कुछ वीडियोस आती हैं कि एक इंसान है जो कि पहले एक लड़की थी, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, तो मेरे उसके बाद उसकी जिन्स जो है वो तब्दील होगी। क्या ऐसा आपने कभी सुना या आपकी तरफ कुछ ऐसे वाक़यात हुए? हम तो सिर्फ अगर अपनी कम्युनिटी की बात करें, अपनी ज़ात तक बात करें, जहाँ तक मैं अपनी ज़ात और अपनी सोच की जो चीज़ है वो मैं क्लियर कर सकती हूँ। जी, मैं मौलाना साहब को नहीं बता सकती इनके अंदर की क्या फीलिंग है, आपकी नहीं बता सकती आपके अंदर की फीलिंग है, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। जिस तरीके से मैं अपने आप को महसूस करती हूँ, मैं अपनी बॉडी को देखती हूँ, मैं अपने वजूद को देखती हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ यानी कि मैं एक मुकम्मल मर्द, जायदाद है, बिजनेस है, कारोबार है, किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर कमी के लिए मैंने ये गेटअप चेंज किया है तो फिर मैं समझ लो वही हूँ। अगर मैं अपने जो मेरा घराना है यानी कि वो भी सूफियों लोगों से पहचान होती है, मेरे माँ बाप दादा ख़ानदान, मेरा बैकग्राउंड भी है, कोई आसमान से गिरी हुई या ज़मीन से उगी मखलूक नहीं। मेरा सिर्फ एक ही कहना होता है, यानी कि जैसे कि नादरा के पास कोई भी जाता है, नादरा को फ़ौरन FIA को कंप्लेन करनी चाहिए। अगर एक औरत है तो वो मर्द लिखवाना चाहती है, मर्द कैसे औरत लिखवा सकता है? मेरा कार्ड चेक करें, मेरा कार्ड के ऊपर ख्वाजा सराह लिखा हुआ है, मगर ख्वाजा सराह लिखने के बाद यानी कि मैं ना किसी मर्द के साथ शादी कर सकती हूँ ना किसी औरत के साथ। रिश्ता देने वाले, रिश्ता लेने वाले क्या बेवकूफ़ होंगे? वो सोचेंगे एक ख्वाजा सराह को हम अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं तो उसके लिए क्या होगा। ख्वाजा सराह सीधी ज़बान में मैं आपको बता दूं, ना वो बच्चे पैदा कर सकता है ना उसकी नस्ल बढ़ सकती।